जोर से बोलूँगा। आप डबल खा लो तो। सभी अल्पाहार पर आमंत्रित हैं। As per the vision of Honorable Prime Minister. Moving ahead, this, as I was mentioning, is the component 1, and these are the final 18 cities who have come forward from our 100 smart cities, following a very rigorous process of selection, of looking at where their waste management stands, who have the best potential to move in the least possible time to get the best outcomes. So you are literally our fast movers. We have a strong expectation on these cities, and this will also start a very unique agility vehicle as an institution and the urban local body. So here starts a new chapter where as Smart City Mission Central Financial Assistance seizes, we are looking at opportunities where we start creating that kind of capacity forward to start the work in the direction of climate with absolute focus on solid liquid waste management and the centrality of all planning. And these are all the states with whom we will be taking up tripartite agreements today. And this will be the various responsibilities of the tripartite partners, and thereafter we have the national level action where we will be supporting you with technical assistance, helping you monitor and evaluate the projects, and of course knowledge is key. We will leave no stone unturned to see that that kind of knowledge is shared with you. And just a couple of hours ago, Honorable Minister, in fact during his inaugural address, has mentioned about a unique initiative that India is proposing, which is C3, Cities Coalition for Circularity. And just now, Honorable Minister was advising Cities Coalition for Circularity India part should begin from these 18 cities where we have twinning of cities, where possibly an Indore can take up a twin partner of another city, maybe a Surat can take up a twin partner of another, and a Navi Mumbai can take up another. And Honorable Minister in the inaugural today, and with that also, as you are aware, we are no more talking of only Swachh Shahar. We are talking of Super Swachh Shahar. There is a Super Swachh League that Honorable Minister. Honorable Ministers, mayors, city commissioners, there's so many of you that I'm... Friends, this is a very, very auspicious day. Auspicious as our friends from the European team people back home, these goals and the support have already said. It is on the anvil of a great partnership that has started again. In fact, For the formal signing. I request everyone now to please welcome Shri Jhabbar Singh Kharra, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, on the stage. Back for the signing ceremony with Jaipur, Udaipur under Component 1. Delegates from Rajasthan, please come on. ओ भाई दोस्त ओ भाई भैया ये जो सिग्नल कम ऐसे बोल दो प्लीज तब आ रहा इसमें आपको ओ बैठ भाई अरे यार बीच में आ रहे हैं
20 मिनट में इतने ग्लिच आएंगे, इसके नहीं आ रहा, ग्लिच जा रहे हैं, वो सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बोल दो ग्लिच जा रहे हो ना। I request photographers to please leave some space in the aisle for the delegates to move towards the stage, please. Please welcome Shri Kailash Vijay Varghia, Honorable Minister of Urban Development Housing, Government of Madhya Pradesh on the stage. Delegates from Madhya Pradesh, please step forward for the team Jabalpur and Ujjain under component 1. भाई साहब कैमरा, कैमरा भाई साहब कैमरा, फोटो वाले भैया नीचे कर लो यार, तुम ही हो क्या? सेंस नहीं है क्या? डोली छोड़ दीजिए। Please welcome Shri Premchand Agarwal, Honorable Minister of Urban Development, Government of Uttarakhand. Delegates from Uttarakhand. Representatives from Arunachal Pradesh, please come forward for the signing under component 2. Representatives from Arunachal Pradesh, please come. Delegates from Assam to step forward for the signing ceremony under component 2 and also signing ceremony with Guwahati under component 1 and delegates from Guwahati. Delegates from the government of Bihar and Muzaffarpur city, please come forward. Delegates from Chhattisgarh to step forward for the signing ceremony under component 2. Delegates from Bilaspur, please join them for the signing. Delegates from Goa, please come for the signing ceremony under component 2. And delegates from Punjab, please come for the signing ceremony under component 1. Representatives from Gujarat to join on the stage for the signing under component 2 and with Rajkot for component 1. आगे
तो भैया Representatives from Jammu and Kashmir to join us on the stage for the signing under component 2 and for the signing with Srinagar under component 1. कार्यक्रम की तो आगे Delegates from Jharkhand, please come forward for the signing ceremony under component 2. Delegates from Jharkhand. Delegates from the government of Karnataka and Belagavi city, please come forward. The signing is done under the component 1 of the city. अरे कैमरा नीचे कर लो यार Delegates from Kerala, please step forward for the signing ceremony. सर प्लीज Delegates representing Manipur, kindly proceed to the stage for the signing ceremony under component 2. Delegates from Manipur. Delegates from Meghalaya, please proceed to the stage. The signing is done under component 2. Mizoram delegates, please proceed with the signing ceremony under component 2. Mizoram. Delegates representing Nagaland, kindly proceed to the stage for the signing ceremony under component 2. We also have among us Shri Vipul Goyal, Honorable Minister of Urban Local Bodies, Government of Haryana. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Manohar Lal, Honorable Union Minister, Ministry of Housing and Urban Affairs, Rajasthan, Uttarakhand and Haryana. Our Secretary Mahua Shri Srinivasan Adhikeshwari, Shri Paul Country Director and German Development Bank. All these are bankers and they are very helpful in moving this company ahead. Another banker is Lisa Brulé, Country Director of the French Government Agency. Mr. Frank Vial, Minister, Councillor and Head of Cooperation, European Union. Our Grand Secretary, SPM Srimati Rupa Mishra. All the mayors and officers from all these corporations and all these other states which have signed the MOUs. Ladies and gentlemen, आज का एक दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण और एक उत्साहवर्धन का दिन, कम से कम देश में, न केवल देश में बल्कि यूरोपियन यूनियंस के सभी देशों में जिस प्रकार की जागृति रिगार्डिंग दिस सेक्टर, स्वच्छता और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की रिडक्शन
इस प्रकार के विषयों पर इतना उत्साह देखने को मिला, वास्तव में बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज जिन भी प्रदेशों में अथवा कॉर्पोरेशंस के हमारे बिंदुओं ने MOUs किए हैं और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए आप सबका बहुत बधाई देता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इस समझौता हस्ताक्षर समारोह में शहरों राज्यों को सिटीज 2 रोल आउट और समझौता हस्ताक्षर समारोह इसमें आए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ हम अपने प्रदेशों में जा करके उत्साह दिखाएंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। CR और सर्कुलर इकोनॉमी केंद्रित इस बड़े सम्मेलन के अंतर्गत सिटीज 2.0 का रोल आउट एक विशेष महत्व रखता है। आज सिटीज 2.0 के तहत शहरों राज्यों के साथ 1800 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मित्रों, जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिटीज 1.0 की जो उपलब्धियां हैं, उसमें सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2018 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सतत नवाचार आधारित और नागरिक केंद्रित शहरी विकास को बढ़ावा देना था। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यानी AFD और यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के सहयोग से लागू किया गया था। इसने शहरी प्रशासन, बुनियादी ढांचे और क्लाइमेट रेसिलियंस को सशक्त बनाया। सिटीज 1.0 की सफलता ने हमें सिटीज 2.0 आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जो सिटीज एक्शन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। सिटीज 2.0 क्लाइमेट एडेप्टेशन और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में अगला कदम है। 31 मई 2023 को यूनियन कैबिनेट द्वारा सिटीज 2.0 को मंजूरी दी गई थी। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है, जो स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महान कदम है। महुआ ने इसे AFD, KFW, यूरोपियन यूनियन और NIUA के सहयोग से विकसित किया है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर रहा है। हम टीम यूरोप के साथ एक मजबूत और मूल्यवान साझेदारी साझा करते हैं। सिर्फ 2 दिन पहले मुझे यूरोपियन आयोग के प्रमुख से मिलने का सौभाग्य मिला था दिल्ली में। हमने अपने साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा की और ये हमारी मजबूत साझेदारी का प्रमाण है कि उस बैठक के 48 घंटे के भीतर हम सिटीज 2 समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 6000 से भी ज्यादा यूरोपियन यूनियन कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। मैं इस अवसर पर अन्य सभी यूरोपियन यूनियन कंपनियों को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी यात्रा का हिस्सा बने। सिटीज 2.0 का मूल सिद्धांत कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, जिससे राज्यों और शहरों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सिटीज 2 के 3 प्रमुख फोकस क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित शहरी विकास, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्लाइमेट रेसिलियंस। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत के 14 राज्यों में 18 शहर सिटीज 2.0 के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में चुने गए हैं। क्योंकि ये रोल आउट हम राजस्थान की पावन धरती से कर रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए विशेष रूप से खुशी हो रही है कि राजस्थान के इसमें 2 शहरों ने हिस्सा लिया है, जयपुर और उदयपुर। ये 18 शहर सर्कुलर इकोनॉमी और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन्हें सिटीज 2 के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त होगी, जिससे वे एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू कर सकेंगे। मैं 18 शहरों से आग्रह करता हूं कि वे वेस्ट मैनेजमेंट की चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करें और एक जो नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, सुपर स्वच्छ लीग। अब ये सुपर स्वच्छ लीग की भी पिछले दिनों में कल्पना इस प्रकार से आई थी कि कुछ शहरों के मेयर्स, वहाँ के अधिकारी मिलते थे कि जब हर बार
फर्स्ट इंदौर और सूरत नहीं आना है तो हमको मेहनत क्यों करनी है। उसी में से विषय आया कि हम ऐसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कैटेगरीज हैं शहरों की बनाई गई, 4900 के लगभग शहर हैं। उन चारों कैटेगरीज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ लास्ट 4 इयर्स ऐसे सब लोगों को एक सुपर स्वच्छ लीग इसमें शामिल कर देंगे, ताकि इस लीग के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे कंपटीशन में उनको भी अवार्ड मिल सके, ताकि हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड और लोग भी आ सकें। और फिर ये जो 4 सुपर स्वच्छ लीग होंगे, इनमें जो भी 5, 10, 12 जितने शहर होंगे उनका कंपटीशन आपस में होगा। और आपस में होने के बाद अगर उसमें कोई पिछड़ेगा तो उसको बैक टू द पवेलियन, यानी जैसे लूडो का खेल खेलते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं और सांप से नीचे आते हैं, तो उससे पीछे रह जाएगा बैक टू द पवेलियन। फिर वो नीचे जाके फिर से कंपीट करेगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा तो सुपर स्वच्छ लीग में जाएगा। इस तरह हर बार सुपर स्वच्छ लीग में कुछ एंटर करेंगे और कुछ बाहर जाएंगे। आज एक नया कंसेप्ट सेक्रेटरी साहब से मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारा C3 में जो सिटीज का आपस में कोऑर्डिनेशन का यानी सर्कुलरिटी पर जो बना है, इसको क्यों नहीं हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, उसके अलावा अपने जो शहर हैं, खास करके सुपर हमारे स्वच्छ लीग के जो सिटीज हैं, इनको एक एक ऐसे शहर के साथ जोड़ा जाए जो रैंकिंग में सबसे कमजोर रह गए हैं। और आगे से वो जो सुपर स्वच्छ शहर जो उस लीग के मेंबर होंगे उनका और जो उन्होंने अडॉप्ट किया शहर उसकी रैंकिंग को मिला करके और उनको नंबर दिए जाएंगे, ताकि ये जो फर्स्ट आने वाला है इसको ये वहम ना हो जाए कि हमेशा के लिए फर्स्ट हो। इसको जो कमजोर से कमजोर एक शहर मिला है उसको स्वच्छ अपने लेवल पर लाने की जिम्मेदारी भी इसकी है। अगर दोनों का मिला के रैंकिंग में पीछे हो गया तो ये दोनों के दोनों फिर नीचे जाएंगे और अपने आप को कम्पीट करेंगे। अपने यहाँ एक अंत्योदय का सिद्धांत है, तो जो आगे पहुंच गया, जो अंतिम रह गया है, उसकी सहायता करना। कंपटीशन में अपने आप को आगे बढ़ाना एक भावना तो है, लेकिन अपने कमजोर साथी को लेके आगे बढ़ना ये एक नई थ्योरी भी हमको इसमें लागू करनी है। तो इसलिए ये जो सुपर स्वच्छ लीग के लोग हैं, ये सिंगल शहर की अब रैंकिंग नहीं होगी, बल्कि 1+1 2 शहरों की इकट्ठी उनकी रैंकिंग होगी। इसलिए अब ये जो सूरत वाले, इंदौर वाले, बाकी जो शहर हैं, ये जरा सावधान हो जाए। इसी तरह मित्रों, इनका जो लक्ष्य होगा डंप साइट्स को पूरी तरह समाप्त करना। बड़े बड़े शहरों में डंप को यानी वेस्ट हीप्स ये बहुत बड़े बड़े हो गए। हमने पिछले 15 दिन का जो अभियान चला था स्वच्छता पर्व, उसमें CTU नाम की थ्योरी दी थी, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट, कि हमारे यहाँ कितने यानी हीप्स ऑफ डंग हैं, उन सबको 15 दिन में साफ करना। छोटे शॉर्ट टर्म लेवल के जैसे जल्दी साफ हो गए, मिड टर्म और जो लॉन्ग टर्म के ऐसे बड़े बड़े हीप्स थे, अब उनकी सफाई भी इस कंपटीशन में इस को हम टारगेट मान करके रैंकिंग में लाएंगे कि बड़े हीप्स आपके यहाँ हैं तो आप कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते। इसलिए बड़े बड़े जो हीप्स ऑफ डंग्स हैं उनको समाप्त करना ये विषय होगा। 100% कचरे का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना, प्रोसेसिंग उसकी 100% कचरा उसका कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये 18 शहर चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से चुने गए सर्वश्रेष्ठ शहर हैं। आप सभी को आगे बढ़ते हुए आपको तेजी, व्यापकता और आवश्यक कौशलों के तैनाती के साथ वेस्ट मैनेजमेंट का नेतृत्व करना होगा। आज जलवायु परिवर्तन शहरों के लिए प्रमुख चुनौती है, इसलिए अब क्लाइमेट एक्शन शुरू करने का भी सही समय है। सिटीज 2.0 के तहत 21 राज्य क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रसार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जिससे वे अधिक क्लाइमेट एक्शन फंड्स आकर्षित और अवशोषित करने में सक्षम होंगे। मैं राज्य सचिवों से आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर पर का पूरा उपयोग करें, अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और टीमों को इस प्रकार सक्षम करें कि वे क्लाइमेट एक्शन के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इसका श्रेय मिनिस्ट्री के अधिकारियों, विशेष तौर पर हमारे सेक्रेटरी महुआ और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्वच्छ भारत मिशन हमारी मैडम मिश्रा, इनको मैं ज़रूर देना चाहूँगा, मैडम रूपा मिश्रा, क्योंकि इन्होंने जब भी कोई सा अभियान में हाथ लगाया तो बढ़ चढ़ करके उस चीज़ का विस्तार से वर्णन करना, सब लोगों के लिए उतारना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि इसकी सफलता के लिए समाज का, जनता का, नागरिकों का सामूहिक प्रयास और इसी प्रकार मजबूत नेतृत्व और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी आवश्यक है, अन्यथा ये काम पूरा होना संभव नहीं है। तो आइए हम मिलकर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दें, शहरी जलवायु तथा क्लाइमेट रेसिलियंस को मजबूत करें, एक स्वच्छ, हरित और सतत भारत का निर्माण करें। हमारे शहरों का भविष्य हमारे अपने हाथों में है। आइए इस अवसर का लाभ उठाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत ये बना करके दे। बहुत बहुत धन्यवाद। We express our sincere appreciation to the Honorable Union Minister for उनके सामने बताओ ना, उनके सामने बताओ। बस थोड़ा और पीछे जाओ। ऑडियो आपको कैमरा नहीं चाहिए, इसको कैमरा चाहिए। आप पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, साइड में जाओ। अरे साइड में जाओ, अरे और पीछे रह गया ना। आपको तो चलिए बुला है थोड़ा, हाँ और थोड़ा, हाँ इधर आ जाओ। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि आज 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जो 12वां ये मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर विचार मंथन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के विजन को लागू करने का एक बहुत सराहनीय कदम से बताया है। सिटीज़ 2.0 कार्यक्रम के तहत देश के सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच वेस्ट मैनेजमेंट पर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसकी आज मैंने घोषणा की है। इसमें न केवल इंटरनेशनल लेवल के शहरों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, बल्कि अपने देश के भीतर भी ऐसे जो शहर हैं पहले से स्वच्छता अभियान में, जिनको हमने सुपर स्वच्छ लीग कहा है, उन शहरों को एक एक और शहर को अडॉप्ट करके एक कंपटीशन का प्रारंभ ये हमने किया है। स्वच्छ भारत मिशन में देश भर के शहरी और ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का ये जो काम है बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दूसरे चरण के माध्यम से हम अब वैज्ञानिक तरीके से प्रतिदिन 1,30,000 टन ये कूड़ा जो है इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4,900 शहर और उसमें कुल 65 करोड़ आबादी यानी 650 मिलियन से अधिक शहरी आबादी, इनकी सेवा की जा रही है, वो इसमें कवर होते हैं। सिटीज़ 2.0 हम जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम इस यात्रा का है। उसके माध्यम से हम जो है कंपटीशन ये पैदा कर रहे हैं, जिसमें 14 स्टेट की 18 सिटीज़ जो EU की अलग 18 सिटीज़ के साथ सिटी टू सिटी एक हमारी पार्टनरशिप होगी और शेष शहर देश के अंदर ही शहरों के साथ वो मुकाबला करेंगे। अगले आने वाले 2 से 3 वर्ष में ये सब शहर अपने आप को इस सुपर स्वच्छ शहर की लीग में अपने आप को ला सकें, ये हमारा टारगेट है। और हम इस विषय को लेकर के और सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी और जो शहर है देश भर के, उनके लिए भी एक लाइट हाउस का काम करेंगे, ताकि इस स्वच्छता अभियान को हम तेज़ गति और ये दे सकें। मित्रों, इस बार का जो सिटीज़ 2.0 का है, इस पर हमने फोकस किया है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट बाय सेटिंग अप ऑफ वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बायो CNG प्लांट्स। इस यात्रा का एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि 2-3 वर्षों में हम इसको और आगे बढ़ाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें 75 से 100 करोड़ रुपए का अनुदान ये इन शहरों को देगी। ये परियोजनाएं नगर पालिकाओं में जिस प्रकार से पहले से अभियान चल रहे हैं,
उसमें बिजली बनाने वाले संयंत्र, बायो CNG संयंत्र और कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 21 राज्य सरकारों को डाटा ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए भी अनुदान ये दिया जाएगा ताकि एमिशन को ट्रैक किया जा सके और राज्य और शहरों की आवश्यकता के अनुसार एक्शन प्लान ये सब बनाया जा सके। बाढ़ संभावित शहरों के लिए भी हम फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स विकसित करने में उनको समर्थन देंगे। अत्यधिक गर्मी से प्रभावित शहरों के लिए उन्हें एक हीट मैनेजमेंट प्लान ये भी विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। हमने आज 1800 करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए मैं सभी राज्य और शहरों को शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और हमारे जो पंचामृत लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में मदद करेंगे। यही आज के इस पूरे अभियान की, पूरे इस सेमिनार की एक योजना आपके सामने मैंने रखी। धन्यवाद। सर, ये तो हो गया कार्यक्रम, एक सवाल दूसरा पॉलिटिकल नहीं, आज का विषय एक सीमित विषय है। हम अपने आप को इधर उधर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा एक पवित्र कार्य है, इससे ध्यान हट जाएगा। मेरा कहना है कि आज के दिन छोड़ करके कल आप आइए मेरे पास, मैं आपको चाय पिलाऊंगा और आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुपर स्वच्छ लीग है वो अभी शुरू हो गया 2-3 साल बाद और उसका विस्तार बता देंगे? नहीं, अभी अगले साल में, क्योंकि अब का जो रैंकिंग चल रही है 31 मार्च को पूरी हो जाएगी और 31 मार्च के पूरा होने में पिछले शहर और इस बार के चारों सेक्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो शहर आएंगे इनको सबको शामिल करके 1 अप्रैल के बाद ये सुपर स्वच्छ लीग के जो शहर हैं उनका घोषणा कर दी जाएगी। धन्यवाद। भारत सरकार का कोई ना कोई मंत्री यहाँ रहने ही वाला है, क्योंकि भारत सरकार और